Now, let us learn about the drawbacks of Dalton atomic theory. Actually, in the last lecture, I forgot to write about this one lecture and topic. So just write it down. So, what were the drawbacks of Dalton atomic theory? As you know, all the theories are not always perfect. There are few drawbacks, and yes, Dalton has also a drawback. You can imagine in 1808 there was no scientific tool to measure things. There was no resources. He just proposed according to those experiments. He tried to learn how the chemical reactions goes on. So what were the drawbacks? Actually, drawbacks were found later. Drawbacks of Dalton atomic theory was he successfully explained the law of chemical combination. अच्छे से समझाया उन्होंने chemical combination, but was unable to explain what the law of combining volumes of Gay-Lussac's law. If you have not studied Gay-Lussac's law, just go to my previous lectures where I already taught this topic, Gay-Lussac's law. He was unable to explain this law. The next one is why atoms of different elements have different valencies. क्यों other elements के atoms की valencies differ करती है. That was also actually this was just completely I guess 2 or 3 postulates के अलावा बाकी सब was not that exact. Why elements, हाँ तो क्यों एलिमेंट कंबाइन होते हैं टू फॉर्म कंपाउंड एटम. Why atoms combine? What is the driving force which leads to the combination of 2 or more atoms to combine? ऐसी कौन सी फोर्सेस हैं जो एक एटम और 2 एटम को मिलाने के बाद मॉलिक्यूल बनाती है और आखिर ऐसा होता क्यों है? That was the failure of Dalton's law. और असल में अगर मैं फेलियर के बनाने लगूं postulates तो बिलियंस ऑफ फेलियर्स हैं. बट for school purpose or board purpose you have to at least write these topics. So in the next section we will learn about modern atomic theory. Just write it in your notebooks. So modern atomic theory, it is modern atomic theory. Atom consists, I guess you remember, Dalton told that the smallest particle in this universe is atom, which is indivisible. But the modern theory, later on J.J. Thomson experiment and Rutherford experiment, we found that atom consists of subatomic particles as well. यानी कि एटम के अलावा भी उससे भी छोटी भी चीजें होती हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एक्सेट्रा. एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट. नेक्स्ट इज एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट मे नॉट बी सेम. जैसे कि डाल्टन लॉ में उन्होंने पहले बताया था कि वन एलिमेंट इज if an atom from A then and if an atom from B, those are completely different identities. He told us that do not confuse us. Element A is a different thing, element B is a different thing. Atom A from element A, atom B from element B are both completely different thing. But here in modern theory what we found, isotopes. Atoms of same element may not be same. वो अलग भी हो सकते हैं. Like hydrogen has got 3 isotopes, 1h1, 1s2, 1s3, protium, deuterium, tritium. The element is same but the atom is different. 3 different atoms. Just you can easily imagine that atoms of same atomic number but different masses. Here mass is different. This one is atomic number, नीचे लिखा जाता है, and the ऊपर वन वाला is mass number. So the next point is atoms of different elements may be same. वो सेम भी हो सकते हैं. डाल्टन ने कहा वो बिल्कुल डिफरेंट है, बट यहाँ पे हमें मिला है कि वो सेम भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आइसोबार कंसेप्ट. दिस इज आइसोबार. आइसोबार कंसेप्ट इज, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज नाइट्रोजन. Normally we find nitrogen like this, but carbon has one isotope of C614 also.
you can easily see the mass number is same for both the element, as Dalton told us that both are different, but we found the similarity. हाँ, ये C6 जो C6H और C614 है, ये है आइसोटोप, आइसोटोप ऑफ कार्बन, ये कार्बन का एक आइसोटोप है. Atoms may not combine in simple whole number ratio. Dalton has told us atoms only combine in simple whole number ratios. But as you know, sucrose, you eat like sugar cane, etc. And the daily sugar generally all have sucrose. We used to eat sucrose, and later on in biology you will study that plant has a transport system of food from one place to another in the form of sucrose, because it is very stable. It has got formula C12H22O11. Here you can easily see the whole number is varied. These are not in whole numbers, 12, 22 and O11. This was also violating Dalton's law. The next topic is next point is atom may change into other atom. As you know, atom change नहीं होते थे according to Dalton, but in modern theory we already know यूरेनियम पर न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट होता है तो यूरेनियम टर्न्स इनटू प्लूटोनियम एंड लॉट ऑफ एनर्जी इज इसमें बहुत सारी एनर्जी निकलती है. एंड यू नो इन एटॉमिक रिएक्टर्स दिस रिएक्शन यूज्ड टू कैरी आउट in order to synthesize lot of heat, and that heat is converted into mechanical energy, and that mechanical energy comes in your room's fan and AC, etc. The last point is in the modern theory of atomic theory is mass of an atom can be converted into energy. He told us mass can neither be created nor can it be destroyed, but he also told us that mass cannot be converted in any other form. But here Einstein broke our myth that energy is interconvertible in the form of mass, and mass can be converted into energy. Actually in the daily life आपकी बॉडी से कुछ ना कुछ मास एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, और कुछ मास एनर्जी जो बाहर है वो आपके अंदर मास की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, और जो उसकी स्पीड है कन्वर्ट होने की वो है c². इतनी जल्दी से होता है कि हम समझ ही नहीं पाते कि कितना मास आया और कितना गया. जनरल प्रैक्टिकली ये हमें लगता है कि वी आर कांस्टेंट. सो दैट वाज ऑल अबाउट मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी. इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट एटॉमिक मास. दैट वाज द मेन मोटो ऑफ आवर टुडेज लेक्चर. So what is atomic mass? What is atomic mass? Let us check with a daily life example. For example, there is a grocery shop in your market. You went there and your mother, as she instructed you to 1 kg of, let us suppose she instructed you to take 1 kg rice from the grocery shop and come. So there are two methods. If the shop is old, like some oldie uncle has been sitting over in and if you go to standard नहीं वैसे तो गलत ही है, like mall etc., then there will be a weighing machine. Just simply the boy took some rice and get it over the weighing machine, and if the digital meter tells him that it is 1 kg, then what happens next? He just give you and you take it to your home. But let us take you are not going to, let us assume you are not going to a mall etc. In my opinion you should go to your normal merchants like uncle auntie वगैरह जो मार्केट में होते हैं, because they are entrepreneurs and we should just promote them in order because our economy is based on our merchants or our
Indian merchants, whatever. Shop is old. So what does he do? He has got a weighing machine or a tarazu. In North India it is called tarazu. ऐसे इधर उधर कुछ अपना अपना स्ट्रक्चर है. But he has a bucket and here he has got weighing mass etc. What does he do? He puts some rice and he puts 1 kg mass over it. When this balances with rice, what does he do next? He just take this rice and take it to your home. But what my point is, he took some reference. Here, reference of measurement is this weighing mass of 1 kg. What if your mother instruct you to carry around 2 kg or 3 kg rice? What will he do? He put some more weight if you want to take 2 kg rice. If your mother has instructed to 3 kg, then what will he do next? He will again put 1 kg. So he will take bigger basket and the rice quantity will be more. Now the point is, he has got some reference point. Without any reference, you can't imagine to weigh anything. This weighing mass just tells us exactly what mass you can buy or sell. So, as the same way in chemistry, we took a reference point. Like जैसे वहां पे मास रेफरेंस पॉइंट से नापा जा रहा है, ऐसे ही हमारी केमिस्ट्री में एटॉमिक मास भी एक रेफरेंस पॉइंट से देखा जाएगा. लाइक हाउ फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट was the mass of हाइड्रोजन. सबसे पहले हमने क्या चुना? एक ऐसा एटम जो सबसे हल्का हो, एंड दैट वाज एट दैट टाइम हाइड्रोजन. So what we decided to do, let us assume this is mass of A. A has got mass m. So ये जो मास है किसके रिस्पेक्ट में है? ये एक्चुअली हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में था पहले. हाइड्रोजन मास and its mass, whatever the A's mass is, let us take this is A, this is hydrogen's mass. This will be relative atomic relative mass of that object A or atom A, whatever you are taking. So the mass, let us assume its mass of hydrogen is taken 1, and here after dividing, let us assume it came 5. So what you will say next? You will say that mass of A is 5 times more than हाइड्रोजन. तो यहाँ पे रेफरेंस पे दुनिया चल रही है. जैसे हमने हाइड्रोजन को रेफरेंस पॉइंट मान लिया, ऐसे ही जो है हमने बाकियों को किसी को रेफरेंस पॉइंट मान के मास को रिलेट करना शुरू कर दिया. सो नेक्स्ट, in this world we just used to live with reference. Next thing, but as we know hydrogen is very unstable, next time we thought that there should be oxygen, because oxygen is the most abundant atom in this universe. As we know, oxygen was taken
later on as a reference point. So मान लेते हैं कि मास जो है A का x है, तो वो किसके रिस्पेक्ट में है? x इज, ऐसे देखते हैं, मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ A इज इक्वल टू रिलेटिव मास ऑफ A, relative mass of A. At the same time, if we have to calculate mass of B, then what will we do? Mass of B divided by mass of oxygen. This will be again relative mass of B. But in 1961 we found actually oxygen is also not very much stable. We were searching for an stable reference. Stable reference means कि वो टाइम के अकॉर्डिंग ज़्यादा चेंज ना हो. अब चेंज होगा तो हमारा जो है पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा. तो हमारे पास पहले हमने हाइड्रोजन देखा जो कि बहुत कम स्टेबल था, फिर उसके बाद हमने ऑक्सीजन देखा जो कि शुरुआत में हमें लगा कि वो स्टेबल होगा, बट लेटर ऑन वी फाउंड दैट इट वाज अनस्टेबल. In 1961 we found that carbon 12 isotope. Carbon 12 isotope means C612. वो कार्बन जिसका मास नंबर है 12. This will be the reference point. And उस दिन के बाद से लेकर आज तक we used to relate masses with respect to this C12 isotope because it was the most stable species on our knowledge. So let us start this section in very much of detail. Just stay with me and concentrate with me, and let me tell you one thing. एक बार में नहीं आएगा समझ में, आपको वीडियो को हो सकता है कई बार पीछे जाकर देखना पड़े. जस्ट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा. टॉपिक थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि गोल गोल है, बट आई एम श्योर आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन यू वेरी मच. अब क्योंकि हमने एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया तो हमें कुछ चीज़ें एज्यूम करनी पड़ी, और वो एजम्पशन जब तक हम याद नहीं करेंगे तब तक हमको चीज़ें समझ नहीं आएंगी. तो वो एजम्पशन जस्ट ऐसे दुनिया में एक आदमी ने बोला कि ये 1 kg मास है, 1 kg, तो आपको मानना पड़ेगा कि भाई ये 1 kg, इंटरनेशनल सोसाइटी ने इसे 1 kg माना है. तो आप जब बाजार में सामान खरीदने जाते हैं तो इसके रिस्पेक्ट में 2 kg और 2.5 kg इसके रिस्पेक्ट में चल रहा है. 3 kg या 3 टन, आप 3 टन भी कुछ लेने जा रहे हैं, 3 टन मतलब 3000 kg अराउंड, तो वो भी किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है? ये 1 kg के रिस्पेक्ट. तो हमें एक्चुअली किसी एक चीज़ को तो रेफरेंस पॉइंट मानना ही पड़ेगा. यहाँ पे हमने 1 kg इसको मान लिया जो इंटरनेशनल सोसाइटी में रखा गया है. मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में देखा होगा प्लेटिनम और इरिडियम का एक आइसोटोप, एक एलॉय है, उसका एक मास जो है आपने जो है एक जगह पे रखा हुआ है, बहुत जगह है, उसकी कई सारी कॉपीज पूरे वर्ल्ड में बांटी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग हम 1 kg मानते हैं. ऐसे ही हमें यहाँ पर एक एजम्पशन लेना पड़ेगा, और वो एजम्पशन क्या है उसे जरा ध्यान से देखें. वो एजम्पशन है 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप. अब एजम्पशन क्या है, ये एक्चुअली कैलकुलेटेड फिगर्स हैं. जो 12 ग्राम C12 आइसोटोप था उसे मैथमेटिकली कैलकुलेट करा गया है. उसमें ये देखा गया कि उसके अंदर 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स आर देयर. जस्ट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लेक्चर. अगर ये लाइन आपको समझ में आती है तो आई एम श्योर आई विल बी एबल टू सक्सेसफुली एक्सप्लेन दिस टॉपिक. 12 gram of C12 isotope must contain नहीं, actually it was 6.022 into 10 की power 23 atoms are there in 12 gram of C12 isotope. तो ये मैथमेटिकली कैलकुलेट किया गया है. कैसे कैलकुलेट हुआ है वो I will explain in the later on sections. Just
later on this thing also known as 12 gram of C12 isotope equals to 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स, और इसी चीज को बाद में एज ए रेफरेंस पॉइंट माना गया 1 मोल। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप बार बार घूर कर देखें, जबरदस्ती इसको कई बार लिखें, जितनी बार आप लिखेंगे ये आपको उतनी बार समझ में आएगा। ये चीज आपको, ये है हमारा रेफरेंस पॉइंट। अब दुनिया की सारी कैलकुलेशन इसके अकॉर्डिंग होगी। 12 ग्राम ऑफ C12, हमने C12 एक जगह ले लिया 12 ग्राम, हमने उसमें कैलकुलेट करा कि इतने एटम्स होंगे, और उतने एटम्स को या 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप को हमने दुनिया में अनाउंस कर दिया कि दिस विल बी कॉल्ड 1 मोल फ्रॉम नाउ ऑन। सो इस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग आज हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। चलो हम पहली चीजें कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहली चीज हमें निकालना है मास ऑफ 1 कार्बन एटम। अगर हमारे पास इतना डाटा है तो हम एक कार्बन के एटम का मास इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो मास ऑफ 1 कार्बन एटम कैसे निकालें? 12 ग्राम ऑफ C12 हैज 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स, यानी कि इतने एटम्स मिलकर 12 ग्राम बनते हैं। इतने सारे एटम्स हैं जिनका वजन है, उन्हें अगर आप ये सारे एटम एक जगह रखेंगे वेइंग मशीन पे तो उनका जो वेट आएगा वो एग्जैक्टली 12 ग्राम आएगा। तो यहां से हम एक एटम का वेट निकाल सकते हैं। जब 12 ग्राम में इतने एटम्स हैं तो एक एटम का वेट कैसे निकलेगा? वेट ऑफ 1 एटम equals to 12 upon 6.022 into 10 की पावर 23 ग्राम। This was the weight of 1 atom of C12 isotope। यहां से हमने इस डाटा से इस चीज को कैलकुलेट कर लिया कि एक एटम कार्बन C12 आइसोटोप का वेट कितना होगा। तो अब उसके बाद हमने क्या करा कि कार्बन के और टुकड़े कर लिए, क्योंकि ये अब आगे हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमने इसको कार्बन माना, ये कार्बन का टुकड़ा है जिसका नाम है C12 आइसोटोप। अब हमको ये चीज मालूम है कि कार्बन से हल्की भी चीजें होंगी और कार्बन से भारी भी चीजें होंगी। आप समझ रहे हैं बात को? कार्बन से हल्की भी होंगी और कार्बन से भारी भी होंगी। तो हल्की एटम्स को इसके साथ रिलेट करने के लिए हमें इसके और भी हिस्से करने पड़ेंगे। तो कार्बन से पहले कितने एटम्स आते हैं? 12। तो हमने क्या करा, देखो जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सॉरी 6 आते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन 6 आते हैं। तो हमने क्या करा कि इन 6 जो पीछे आ रहे हैं उसके लिए हमने क्या करा, अब 6 में हाइड्रोजन का मास 1 है, ठीक है, हीलियम का मास 2 है, लिथियम का मास कितना है? 6, लिथियम, बेरिलियम का होगा 4 2 8, एग्जैक्टली डबल होता है एटॉमिक नंबर का बेरिलियम, बोरोन, कार्बन का 12 होता है। तो एक्चुअली जो मास का कंटेंट है कार्बन का वो 12 है, तो बाकियों का 1 से लेकर 12 के बीच में होगा। तो हमने क्या करा कि कार्बन C12 आइसोटोप के हमने 12 हिस्से कर लिए, क्योंकि 1 से लेकर 12 तक ही हो सकता है। तो हमने क्या करा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। अब जिससे कि हम कार्बन से पहले वालों का मास इजीली निकाल सकें, तो हमने C12 आइसोटोप के 12 पीस कर दिए। कितने पीस? 12 पीस। आपको बात समझ आ रही? पहले हमने क्या करा, हमारे पास एक डाटा था 12 ग्राम C12 आइसोटोप में इतने एटम्स होते हैं। हमने क्या करा कि इन एटम में एक एटम का मास कितना होगा वो हमने ऐसे कैलकुलेट कर लिया। सिंपल मेथड है, स्टोइचियोमेट्रिक मेथड। कम के लिए आप डिवाइड करते हैं और डिवाइड करेंगे तो आपको 12 बटे ये करना पड़ेगा, 12 बाई ये। अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, जो कि एटम का इतना ज्यादा मास हो नहीं सकता। तो हमने 12 डिवाइडेड बाय 6.022 into 10⁻23 कर दिया। इसी को हम एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं, Na या एवोगैड्रो नंबर, वो बाद में आपको समझ में आएगा। तो हमने क्या करा कि
C12 आइसोटोप की मैंने 12 हिस्से कर दिए। ये C12 आइसोटोप का एक एटम है, वन एटम, सिंगल एटम। हमने इसके 12 पीस कर दिए, ऐसे 12 पीस। अब हमने क्या करा कि इन 12 पीस में से एक पीस का, किसी भी एक पीस का नाम हमने चेंज कर दिया। मैं इसको बाहर निकाल के रखा हूं, इसको मैंने यहां, ये वो पीस है जो C12 आइसोटोप के 12 हिस्से करे गए हैं। अब अगर मैं ऐसे पीस की मल्टीप्लाई कर दूं 12 से मल्टीप्लाई कर दूं, मैंने 12 पीस की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना जाएगा, मास ऑफ वन कार्बन एटम। अगर इसके मास से मल्टीप्लाई कर दूं, ये मान लो इसका कोई मास होगा, इसकी मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मास ऑफ वन कार्बन एटम आ जाएगा। अब आगे हम क्या समझेंगे कि इस चीज को, ये जो हमने अलग किया है, इसका नाम हमने रख दिया है AMU। आज से इसका नाम है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। यहां तक पहले आप कॉपी में नोट करें, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। फिर से बोलता हूं, पहले हमने ये चीज याद करी क्योंकि एक रेफरेंस पॉइंट है, इसे याद करना पड़ता है। 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप हैज गॉट दिस वन ऑफ एटम्स, और इसी एटम को हम मोल कहते हैं। 12 ग्राम में अगर इतने एटम्स हैं तो एक एटम का मास हमने ऐसे कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, एक एटम का मास ऐसे कैलकुलेट करा तो ये है एक एटम। अब उस एक एटम के मैंने 12 पीस कर लिए और उन 12 पीसेस में से एक पीस का नाम रख दिया हमने AMU। आई बस हमने। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, जल्दी से इसे नोट कर लो। तो अभी तक हमने सीखा कि एक एटम का मास हमने यहां से निकाल लिया है, ठीक है, इजीली हमने कैलकुलेट करा, पिछले सेक्शन में हमने देखा। और हमने देखा कि एक एटम का मास तो हम निकाल लेंगे, बट इस एटम के मास से छोटे भी होंगे कुछ एटम्स, तो उसके लिए हमने इस एक C12 एटम के मास के 12 हिस्से कर दिए, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है और C12 तक में कार्बन का 12 होता है, तो 1 से 12 के बीच में वैल्यू लाई करेगी, बाकी पीछे वालों की, आगे वाले की हम रिलेट कर लेंगे। तो हमने क्या करा कि ये C12 आइसोटोप है, C12 आइसोटोप, और हमने इसके 12 हिस्से कर लिए बिल्कुल इक्वल। एक हिस्सा हमने बाहर निकाल लिया और इस एक हिस्से का नाम हमने रख दिया AMU, और एक हिस्से का नाम हमने रख दिया AMU, है ना। तो 1 AMU की फिर हमने डेफिनेशन बनाई। अब उस डेफिनेशन का नाम हमने रखा एटॉमिक मास यूनिट, ऑल्सो नोन एज यूनिफाइड मास। इसे कुछ लोग 1 AMU भी बोलते हैं और इसको U से भी डिनोट कर देते हैं, एक ही बात है। 1 unified mass, it is defined as the mass exactly equal to 1/12, यानी कि इसका 1/12, ये C12 है, इसका 1/12 the mass of 1 कार्बन C12 आइसोटोप। तो चलो हम कैलकुलेट करते हैं कार्बन के C12 आइसोटोप के एक एटम का मास क्या है। ये तो 1 एटम का मास है, मास ऑफ 1 C12 एटम equals to 12 upon 6.022 into 10 की पावर 23 ग्राम। इसे फर्दर कैलकुलेट कर लेते हैं। ये तो एक एटम का मास है और AMU क्या है 1/12, तो अगर मैं इसका 1/12 कर दूं तो ये इस एक डिब्बे का मास आ जाएगा, नहीं आ जाएगा AMU का? यस। तो मैं क्या करने वाला हूं, मास ऑफ 1 यूनिट या AMU, ये जिसे मैं डिब्बा बोल रहा हूं या बॉक्स, इक्वल्स टू इसका 12 अपॉन, इसको मैं Na लिख देता हूं, Na नहीं, चलो अभी सॉल्व करना है, इंटू 10 की पावर 23, ये इसका 1/12। ये जो मास है ये एक डिब्बे का मास है, जिसे हम बोलते हैं 1 AMU। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 1 AMU इक्वल्स टू, ये कैलकुलेट करके अगर आप इसे प्रॉपर्ली कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 1.66056 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ये आ गया एक बॉक्स का, C12 के 12 हिस्से में से एक बॉक्स का मास आएगा 1.66056 इंटू 10 की पावर -24,
या फिर इसे हम केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 056 इंटू 10 की पावर -27 केजी। यहाँ से जब हमने 1 AMU का मास निकाल लिया तो बाकी की कैलकुलेशन हमारे लिए सुपर इजी है। एंड इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट दिस थिंग फर्दर।